Hi guys, are you preparing for RBI Grade B examination or you have done the preparation of RBI Grade B examination? Then in this video, I would be telling you 5 such examination which you can give by using the RBI Grade B preparation with almost zero effort. The mistakes that generally aspirants commit that they confine themselves with only one examination. बस वहीं तक सोचते हैं कि मुझे यही एग्जाम देना है. Guys, when you can give the other examination by using the same preparation, then what is harm in that? You must give the examination and they all are very reputed position that I am going to tell you here. So let's discuss those 5 examination. Welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's discuss about the 5 examination that you can give by using the preparation of RBI Grade B examination. So the very first important exam is the NABARD Grade A examination, guys. So here if I tell you about the overlapping part between the RBI and the NABARD, so that is 80%. So 80% का overlap है यहाँ पर between the RBI and the NABARD. So if you have done the RBI preparation, then यहाँ पे सिर्फ थोड़े से effort के साथ you can give NABARD Grade A examination as well. So let's see कौन से component यहाँ पे overlapping है. So guys, if I tell you about the RBI Grade B examination, so you know very well 2 phases are there. ठीक है, I'm not talking about the interview, written phases की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. So phase 1 में you can see quant, reasoning, English and current affairs is there, which we also call it general awareness. Phase 2 में descriptive English, ESI and the finance and management. These are the components of the RBI Grade B phase 1 and phase 2 examination. If I tell you about the NABARD Grade A examination, so here you can see quant, reasoning, English and current affairs, they would be asked in the phase 1 and also ESI and the ARD in the phase 1 itself. ठीक है, phase 2 की बात करें so ESI, ARD and the descriptive English would be asked in the phase 2 also. तो यहाँ पर you can see the overlapping part. देखिए, if you have prepared quant, reasoning, English and current affairs here, that would be helping you here also. ठीक है, if you have prepared about the descriptive English here, so that would help you here also. If you have prepared the economic and social issues, that will be helping you here also. Exactly same syllabus है. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक मेजर कंपोनेंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20% जो मैंने नहीं असाइन किए हैं, दैट इज द FM इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन एंड द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन द NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन. दिस इज द ओनली मेजर कंपोनेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर और इसकी प्रिपरेशन आप आराम से 30-35 डेज में कर सकते हैं. विच मीन्स इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, गाइज, NABARD शुड बी गिवन एंड आई कैन से NABARD मस्ट बी गिवन. ठीक है, NABARD में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए एंड रीजन बीइंग 80% इज द ओवरलैपिंग पार्ट. बात करें यहाँ पे इस छोटे कंपोनेंट के डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ फेज 1. नंबर सेकंड, दिस इज द क्वालिफाइंग पार्ट. इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द फेज 2. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंपोनेंट 10-20 मार्क्स के कंपोनेंट है, बहुत बड़े नहीं है. आप आराम से इनको 2-4-5 दिन में, एक हफ्ते में मैक्स टू मैक्स यू कैन फिनिश. तो यहाँ पर फोकस इस पे है नहीं, फोकस एक मेजर कंपोनेंट पे है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस कंपोनेंट वेल, तो आप यहाँ पे NABARD के लिए पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है. तो यहां पे आपने सिर्फ एफर्ट कहां पर लगाया, ARD वाले पार्ट में. ठीक है, रेस्ट आपकी जो प्रिपरेशन RBI में थी वो वहीं की वहीं यूटिलाइज हो गई. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम दैट यू मस्ट गिव इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन और इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन. लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जामिनेशन दैट इज IRDAI ग्रेड ए एग्जामिनेशन. सो RDAI ऑल्सो कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर द पोजिशन ऑफ ग्रेड ए. तो वहां पे बात करें ओवरलैपिंग पार्ट की, सो इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, 70% इज द ओवरलैपिंग पार्ट. 70% प्रिपरेशन आपकी हो गई है साथ ही साथ. ठीक है, तो आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द IRDAI एग्जाम ऑल्सो. अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट है दैट यू हैव टू प्रिपेयर. तो यहाँ पे यू नो द कंपोनेंट्स ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. इफ आई टेल यू अबाउट द कंपोनेंट ऑफ IRDAI ग्रेड एग्जामिनेशन, सो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स फेज 1 में सेम है, जो हमने यहाँ पे देखा था वही सेम एग्जैक्टली यू कैन सी हियर ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे बात करें ESI की, तो ESI जो आपने यहाँ पढ़ा था इन द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन वो हेल्प करेगा आपकी थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे जो मेजर फोकस रहेगा दैट वुड बी ESI इंपैक्टिंग इंश्योरेंस. तो थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर पर ज्यादा यहाँ पे फोकस रहने वाला है. देन बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट वुड बी कंप्लीटली सेम दैट यू वुड बी
कवरिंग इन द आरबीआई प्रिपरेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। एक इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट यू हैव टू रीड एडिशनली। तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट जो आपकी यहाँ भी हेल्प करेगा, जो आपकी यहाँ भी हेल्प करेगा। ईएसआई वाला जो पोर्शन है जो आपने यहाँ पे कवर किया आरबीआई में, दैट वुड बी हेल्पिंग यू। मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली सेम, दैट इज इन द रिजर्व आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो पूरा का पूरा सेम है ही। सो द थिंग इज कि यहाँ पे यू जस्ट हैव टू फोकस मेजरली ऑन द इंश्योरेंस पार्ट। आपने इंश्योरेंस पार्ट अच्छे से कर लिया तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है IRDAI एग्जाम के लिए भी। Clear? So this is the second examination that you can give by using the RBI grade B preparation. Third exam is the SEBI grade A examination. ठीक है, SEBI grade A examination you can give. तो SEBI grade exam की बात करें, so overlapping part between the RBI grade B and SEBI grade A examination is around 60%. Let's see that. So यहाँ पे you can see, ठीक है, you know the components of RBI grade B examination. If I tell you about the components of the SEBI grade A examination, so again quant, reasoning, English and current affairs ये तो है ही। तो यहाँ पे सेबी में पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंसेप्ट है इन बोथ फेज 1 एज वेल एज फेज 2। तो यहाँ पे कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स इज द पार्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ फेज 1। पेपर 2 की बात करें यहाँ पर, तो पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स वुड बी आस्क्ड, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड द इकोनॉमिक्स। तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपके फेज 1 की पेपर 2 में भी रहेंगे एंड फेज 2 के पेपर 2 में भी रहेंगे, विच मीन्स यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर देम वंस, और उसके बाद आपने प्रिपेयर कर लिया, सो यू वुड बी गेटिंग द हेल्प इन फेज 1 ऑल्सो, इन फेज 2 ऑल्सो, इन द पेपर 2 पार्ट, राइट। अब यहाँ पे बात करें अगर ओवरलैपिंग पार्ट की गाइस, सो ऑल दीज कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये जो आपने यहाँ पे कवर की है वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। यहाँ पे 3 कंपोनेंट जो आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट इज कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। क्या ये छोटे कंपोनेंट है? जी नहीं, बहुत छोटे कंपोनेंट भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम बात करें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, वैसे बहुत वास्ट है बट सेबी के सिलेबस में इतना वास्ट नहीं है। बात करें कॉस्टिंग की, वैसे बहुत वास्ट है लेकिन यहाँ पे सेबी के एग्जाम में उतना वास्ट नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, 7-8 चैप्टर्स हैं जो आते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन 7-8 चैप्टर्स आर देयर फ्रॉम द कंपनीज एक्ट विच आर आस्क्ड इन द सेबीज एग्जामिनेशन। और सेबी में सिलेबस इज वेल डिफाइंड, वॉट एवर इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, सो यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो यहाँ पे दीज 3 कंपोनेंट्स वुड बी देयर दैट यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी हियर, ये आपके काम आ जाएंगी, द प्रिपरेशन दैट यू वुड be doing as a part of RBI grade B examination. Next is the PFRDA grade A as well as NPS grade B examination. So PFRDA grade A और NPS grade B एग्जाम भी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप RBI से प्रिपेयर कर सकते हैं, RBI की प्रिपरेशन यू कैन यूज। सो दिस इज द ओवरलैपिंग सिलेबस, 60% इज द ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन द RBI एंड द PFRDA एंड द NPS grade B। यहाँ पे दिस इज एग्जैक्टली सेम, दिस इज एग्जैक्टली सेम। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, तब तो 100% का कवरेज है, ठीक है, बिटवीन द सेबी एंड द PFRDA एंड द NPS ग्रेड बी एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे RBI की तैयारी कर रहे हैं तो RBI की तैयारी से सेम ही है, 60% का ही है। सारी चीजें विच वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ सेबी, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग इज देयर एक्सेप्ट द पेंशन सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे पेंशन सेक्टर एक छोटा सा कंपोनेंट है, बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं, छोटा सा कंपोनेंट है, विच यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली हियर फॉर द PFRDA एंड NPS ग्रेड बी एग्जामिनेशन, जो सेबी में नहीं है। Except that, except the pension sector, each and everything is same, syllabus same है, pattern same है, everything is same as the SEBI grade examination, ठीक है। So जो स्ट्रैटेजी हमारी RBI और सेबी के लिए थी, सेम स्ट्रैटेजी वुड बी RBI एंड PFRDA एंड NPS ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो दीज कंपोनेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, एंड रेस्ट ऑल द कंपोनेंट्स वुड बी द सेम, ठीक है। अगर आपने सेबी की तैयारी की है देन तो फिर आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना, 100% प्रिपरेशन यू हैव डन फॉर द PFRDA ऑल्सो, फॉर द NPS ऑल्सो, एक्सेप्ट द पेंशन सेक्टर, जो कि बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, आई टोल्ड यू। सो दिस इज द 4th एग्जामिनेशन। इन दोनों को मैं एक ही एग्जाम कंसिडर करके आपको बता रहा हूं। द लास्ट एग्जाम इज द IFSCA ग्रेड ए एग्जामिनेशन गाइस। यहां पे भी अगर हम बात करें ओवरलैपिंग सिलेबस की, सो दैट इज 60% बिटवीन द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड द IFSCA ग्रेड ए एग्जामिनेशन। इफ आई टेल यू अबाउट द IFSCA ग्रेड एग्जामिनेशन, फेज 1 में कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी यहां पे प्रिपेयर कर ही लिया है, आपको अलग से कुछ परेशान होना नहीं। एंड यू कैन सी, अगर आपने कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अप टू द लेवल ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, फिर तो आप इनको किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जो भी कोई भी और भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम हो रहे हैं। सबसे टफ जो होता है वो RBI ग्रेड बी ही होता है। अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया देन अदर एग्जामिनेशन यू कैन गिव वेरी इजीली, ठीक है। बात करें यहाँ पे गाइस, पेपर 2 भी होता है, यहाँ पर भी फेज 1 में पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंसेप्ट है। सो पेपर 2 में गाइस यहाँ पे यू कैन सी
कि यहाँ पे यू वुड बी हैविंग करंट इवेंट स्कीम्स, ठीक है। देन यहाँ पे कॉस्टिंग एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई देन इन दैट केस आपको यहाँ पे कॉस्टिंग एंड कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे यू वुड बी प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स स्कीम्स एज वेल एज द करंट इवेंट एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई ऑल्सो। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वो आपकी हेल्प करेगा, ईएसआई वाला पेपर। एफएम पूरा का पूरा है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, सेम आरबीआई वाला पैटर्न। इंडियन इकोनॉमी सेम, द ईएसआई सेक्शन ऑफ आरबीआई, राइट। तो यहाँ पे पेपर 1 में यू कैन सी, पेपर 2 में दिस वन, क्लियर। बट इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ सेबी, अगर आपने यहाँ पे सेबी की प्रिपरेशन की है फिर तो आपको यहाँ पे कुछ भी अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, कॉस्टिंग, इवन कॉस्टिंग एंड कॉमर्स भी आपकी वहां पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो इफ यू हैव डन आरबीआई प्रिपरेशन देन तो ओवरलैपिंग पार्ट यहाँ पे 60% है। आपने सेबी की तब तो फिर लगभग पूरा ही है यहाँ पर, ठीक है। बात करें यहाँ पे फेज 2 की गाइस, तो फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेम है, ठीक है। देन IFSC एक्ट एंड रेगुलेशन इज देयर, IFSC एक्ट एंड रेगुलेशन है यहाँ पर जो आपको सेपरेटली प्रिपेयर करनी पड़ेंगी यहाँ पे, विच यू वुड नॉट बी कवरिंग एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। इंश्योरेंस एंड पेंशन वाला सेक्टर है जो आपको यहाँ पर बेसिकली सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट आप फाइनेंस वाले टॉपिक में यू वुड बी प्रिपेयरिंग इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो इफ यू हैव डन द आरबीआई प्रिपरेशन देन ये आपको 3 कंपोनेंट, फेज 1 में कॉस्टिंग एंड कॉमर्स, IFSC Act and Regulation and the insurance and pension you have to prepare separately. If you have done the SEBI preparation then in that case आपको फिर इनमें से बस ये अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस आपने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, कुछ माइन्यूट पर्सन। और अगर आपने यहाँ पे IRDAI की प्रिपरेशन की है तब तो आपका ये वाला पोर्शन है पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्लियर। सो गाइज दीज ऑल आर द एग्जामिनेशन दैट यू कैन गिव by using the RBI grade B preparation। यहाँ पे इन एग्जाम को बेसिकली आप दे सकते हैं RBI grade B preparation की हेल्प से। एंड वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड गाइस कि यहाँ पे यू शुड नॉट कन्फाइन योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इफ यू कैन गिव अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो बाय यूजिंग द प्रिपरेशन ऑफ वन एग्जामिनेशन देन यू मस्ट गिव। देखिए एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में जाएंगे थोड़ा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओवरलैपिंग पार्ट वो आपकी काफी हेल्प करने वाला है वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन के साथ यू वुड बी एबल टू ओपन एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। तो ये करिए, एक एग्जाम के भरोसे मत बैठिए, प्रिपरेशन करिए। डेफिनेटली आप एक एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करिए, बट वंस यू कंप्लीट द टारगेट देन उसके बाद यू हैव टू लुक अराउंड द अपॉर्चुनिटीज की वहां पे कौन कौन सी अदर अपॉर्चुनिटीज हैं दैट यू कैन ग्रैब, ठीक है। अल्टीमेटली सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडीज है, बहुत अच्छी पोजीशन आपको प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है। सो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, आपको सारे ही रेगुलेटरी बॉडीज में चीजें लगभग सिमिलर मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखिए ताकि इफ एनी अपॉर्चुनिटी कम्स अप देन इन दैट केस आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ी से एफर्ट के साथ यू कैन गिव योर बेस्ट एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर regulatory body, right? So guys, this is all with respect to discussion, and those who are preparing for the RBI Grade B 2025 examination, और अगर आप यहाँ पे कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम की तलाश में है गाइस, सो आपकी तलाश यहाँ पे पूरी हुई, दैट बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड हियर RBI ग्रेड बी लक्ष्य 2.0, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर द RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ठीक है। यहाँ पे इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स गाइस, इसके बाद बेसिकली आपको कुछ भी अलग से रेफर नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू वुड बी बेसिकली गेट एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, रीजन बीइंग हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू एंड नंबर ऑफ लाइव क्लासेस, यू कैन सी द नंबर ऑफ लाइव क्लासेस गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी, ये लाइव क्लासेस सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको रिवीजन करवा रहे होंगे, दीज रिवीजन के लिए अलग से कोर्स आएगा जो उसका पार्ट आप ऑलरेडी बनेंगे, ठीक है। बाद में व्हेन वी वुड बी लॉन्चिंग द क्रैश कोर्स आपको ऑलरेडी उसका एक्सेस मिलेगा, बट राइट नाउ दिस इज द फाउंडेशन कोर्स वेयर वी वुड बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल, इन वेरी डिटेल्ड मैनर, ठीक है। सो यहाँ पे लाइव क्लासेस में हमारा फोकस जो है वो है हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, वी आर फोकसिंग ऑन कंसेप्ट पार्ट, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ताकि इफ यू आर समवन हु इज नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप उन चीजों को टैकल कर सकें, ठीक है। और आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, आपके नॉलेज को एनरिच करके, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर वहां पे कंसेप्चुअली क्लियर करके, ठीक है। You would have the access of mock test, one-to-one mentorship would be provided, descriptive answer writing, interview guidance program, top quality of notes. So each and everything, this is a comprehensive course. If you are having this, then do not worry about anything. Each and everything will be taken care of from phase 1 till your selection. ठीक है, सारी चीजें। तो that is why I am saying this is a comprehensive course and this is one of the best course that we are providing for the RBI Grade B preparation 2025. And guys, यहाँ पे
do one thing, do join the telegram group, इसको आप जरूर join करिए so that you can be in touch with me. And also guys, the link is provided in the description of the video, so you can click on the link, you can get to know about each and every deliverables that we are providing as a part of Lux 2.0. if you feel that these are basically suitable for your preparation, ठीक है, अगर आपकी वो डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं, then do enroll for the course, do subscribe for the course. recently we have started the classes, तो क्लासेस अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, तो उसका आप पार्ट बनिए एंड यू कैन अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश, ठीक है, आप इसको जरूर अप्लाई करिए, इसको अप्लाई करने के बाद यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंस दिखाई देगा, कितना बड़ा डिफरेंस आपको मिल रहा है वहां पे, जो डिस्काउंट दैट वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग, दैट यू वुड बी सीइंग ऑन द पोर्टल, उसके बाद व्हेन यू वुड बी अप्लाइंग द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम एंड दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड. व्हेन यू अप्लाई दिस कूपन कोड, you can see a basically major impact on the final prices, so you will get maximum possible discount, and we are trying every possible way to make the course more affordable for you, and this is one such mechanism through which we are providing you the most affordable course. So I would be waiting for you in the class itself guys. So this is all with respect to today's discussion. I hope you got to know how many examination you can give by using the RBI grade B preparation. So we'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys.